آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے صاحبہ کے لفظ پر لفظی طوفان کھڑا ہو گیا. بلاول بھٹو کے کپتان پر تاک تاک کر نشانے. کہتے ہیں مرد کو عورت کہہ کر کیا پیغام دیا گیا. وزیراعظم نے اپنا قد چھوٹا کیا ہے. ان کی زبان روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے پھسلتی ہے. بولے سسٹم اب مزید نہیں چل سکتا. 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کریں گے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج پھر گرما گرمی عروج پر رہی. پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کے حوالے سے وزیراعظم کے ریمارکس پر شدید احتجاج کیا. اپوزیشن کی خواتین ارکان نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر لیا. سوالوں کا جواب نہ ملنے پر ارکان کے ساتھ اسپیکر بھی برہم ہو گئے. مزید اس رپورٹ میں. بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنے پر پیپلز پارٹی کا پارا ہائی. قومی اسمبلی میں گرما گرمی نعرے بازی بھی ہوتی رہی. وقفہ سوالات کے بعد اپوزیشن کی خواتین ارکان نے وزیر اعظم کے بیان پر شدید احتجاج کیا اور نقطہ اعتراض پیش کیا. احتجاجی خواتین نے اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ کر لیا. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے بلاول کے حوالے سے بیان کو خواتین کی توہین قرار دیا. انہوں نے واضح کیا کہ اگر وزیر اعظم اپنے کہے پر معافی نہیں مانگیں گے تو تحریک چلائی جائے گی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان نے سوالات کے جوابات نہ ملنے پر بھی شدید احتجاج کیا. اپوزیشن کے احتجاج کے دوران ایوان میں انتخابات ترمیمی بل 2019 منظور کر لیا گیا. یہ بل وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کیا جو کثرت رائے سے منظور کیا گیا. مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب کی وزیر اعظم پر تنقید. کہتے ہیں بلاول کے متعلق وزیر اعظم کا بیان غیر آئینی ہے. عوام نے عمران خان کو ووٹ جملے بازی کے لیے نہیں دیا، خدمت کے لیے دیے ہیں. وزیر اعظم سے بیان واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا. بلاول بھٹو کو صاحبہ کہنا ہلکی پھلکی موسیقی ہے. شیخ رشید کا بھی دلچسپ تبصرہ. کہتے ہیں کہ عمران خان کی زبان پھسل گئی تو کیا فرق پڑ گیا. بلاول چڑچڑا ہو گیا، روز ناراض ہو جاتا ہے. اور اب آپ کو بتائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کو اسد عمر کو منانے کا ٹاسک مل گیا. شیخ رشید کی منسٹر کالونی میں سابق وزیر خزانہ سے ملاقات کی اور انہیں کابینہ میں واپس آنے کی درخواست کی. اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے آپ نیوز کے نمائندے صدیق ساجد سے. صدیق ساجد، دونوں رہنماؤں میں ہونے والی ملاقات کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد آج منسٹر کالونی میں ملنے گئے اسد عمر سے اور ان سے درخواست کی کہ وہ کابینہ میں واپس آئیں. ان کی جو ہے وہ عمران خان کو بھی ضرورت ہے، اس ملک کو بھی ضرورت ہے. اس موقع پر ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ تک جو ملاقات جاری رہی، اس میں بعض گلے شکوے بھی اسد عمر نے کیے اور یہ بھی کہا کہ وہ کوئی بھی ذمہ داری دوبارہ لینے سے پہلے وزیر اعظم سے ملنا چاہیں گے، جس کے اوپر شیخ رشید کو یقین دلایا کہ وزیر اعظم جیسے ہی چین سے واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اسد عمر ابھی تک منسٹر کالونی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مقیم ہیں اور جاتے جاتے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو قریبی ذرائع جو اسد عمر کو ان کا یہ کہنا تھا کہ شیخ رشید نے پھر ان سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں ورنہ میں شام کو آپ کے گھر پھر آ جاؤں گا، جس کے اوپر اسد عمر نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا. اس کے بعد پھر شیخ رشید احمد جو ہے ان کی رہائش گاہ سے روانہ ہو گیا. جی بہت شکریہ صدیق ساجد، نمائندہ آپ نیوز اسلام آباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیب میں حاضری ہوئی. انہوں نے پیشی سے پہلے گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے، مگر معاملہ صرف پوچھ گچھ تک رہا. سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے شازیہ نیّر کی رپورٹ. ایل این جی کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ایک بار پھر نیب میں حاضری ہوئی. شاہد خاقان عباسی اب تک 22 سوالات کے جواب جمع کروا چکے ہیں. نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے مزید سوالات اور پوچھ گچھ کی. صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کچھ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ دیر بعد جب واپسی ہوئی تو صحافیوں نے جلدی واپس آنے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم خوش رہتے ہیں، نیب جو بھی پوچھ لے ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہر قسم کا جواب میرے پاس موجود ہے، میں خود موجود ہوں، ہر جواب ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب جتنی بار بھی بلائے گا وہ حاضر ہوں گے. کیمرامین جان کے ساتھ شازیہ نیّر، آپ نیوز اسلام آباد. اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں. وزیر اعظم کا افغانستان سے متعلق اہم بیان سامنے آیا ہے. کہتے ہیں گزشتہ 40 سال میں افغان تنازع سے پاکستان اور افغان عوام متاثر ہوئے. کپتان کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے بعد خطے میں امن کا تاریخی موقع ملا ہے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان مذاکرات کے منطقی مرحلے سمیت امن عمل کی مکمل حمایت کرتے ہیں.
और साथ ही आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज आम दौरे पर चीन रवाना होंगे, जहां वो बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन में मसरूफियात के बारे में देखते हैं सिद्दीक साजिद की ये रिपोर्ट। सिद्दीक साजिद की ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बता रहे हैं बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अहम तरीन दौरे पर आज चीन रवाना होंगे और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन में मसरूफियात क्या होंगी, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको इसी हवाले से बता रहे हैं चमन के नवाई इलाके मुसल्लह अफराद ने पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर फायरिंग कर दी है। एक लेडी पोलियो वर्कर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गई है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाकया चमन के करीब शिन तालाब सुल्तान जई के इलाके में पेश आया। महकमा सेहत की टीम इलाके में कतरे पिलाने की मुहिम पर थी कि मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद समी आगा के मुताबिक फायरिंग से एक लेडी पोलियो वर्कर जाँ बहक हो गई जबकि एक शदीद जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेवीज ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने सुल्तान जई के इलाके में पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। अब आपको बताएं लाड़काना के इलाके रत्तू डेरों में एड्स का मरज शिद्दत इख्तियार कर गया। एक माह में 15 बच्चों के सैंपल तशखीस के लिए भेजे गए। 5 बच्चों में HIV वायरस की तस्दीक हुई है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI डॉक्टर सलाहुद्दीन नारेजो के मुताबिक बाकी 10 बच्चों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। एड्स वायरस मुस्बत आने वाले बच्चों की उम्र 8 माह से 8 साल तक है। इंचार्ज HIV लाड़काना डॉक्टर हुलाराम के मुताबिक पाकिस्तान भर में कराची के बाद सबसे ज्यादा एड्स के मरीज लाड़काना में हैं। शहर में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2400 से जायद है। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट्स में आग लग गई। इमारत के एक कमरे में लगने वाली आग ने आधी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। GPO चौक में मौजूद बैंकिंग कोर्ट में आग एक जज के रिटायरिंग रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी। पुरानी इमारत की लकड़ी की छत आग फैलने का बायस बनी। देखते ही देखते रिकॉर्ड रूम समेत कई हिस्से आग की लपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया जबकि कूलिंग का अमल जारी है। और लाहौर में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने बाप और 2 बहनें कत्ल करके खुदकुशी कर ली। फायरिंग से एक भाई जख्मी हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अंदोहनाक वाकया शफीकाबाद के इलाके में पेश आया। मुलजिम अवैस की फायरिंग से वालिद रियाज और बहनें सिद्रा और मरियम जाँ बहक जबकि एक भाई फरहान जख्मी हो गया। मुलजिम ने बाद में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस और फोरेंसिक टीमें जाए वारदात पर पहुंच गईं और लाशों और जख्मी को मेयो अस्पताल मुंतकिल किया। अभी तक हम बिल्कुल भी इसमें इस पोजीशन में नहीं हैं इस स्टेज पे कि हम कंक्लूड कर सकें कि ये उसने अपनी फैमिली को मारने के बाद खुदकुशी की है या नहीं, लेकिन हम इसमें मज़ीद मालूमात कर रहे हैं। अभी देखते हैं किस तरफ इसकी तफ्तीश जाती है। SP सिटी का कहना है कि जख्मी फरहान के बयान के बाद असल हकाइक सामने आएंगे, जबकि मुलजिम के एक भाई शहजाद का कहना है कि अवैस अपनी बीवी को तलाक के बाद वापस घर लाना चाहता था। इस बात पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। कुछ घरेलू इशू थे अवैस के हम सब के साथ। वो चाह रहा था कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करना चाह रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत इस बात। महल्लेदार फरीद का कहना है कि मकतूल रियाज का खानदान इंतहाई शरीफ था। वाकया गैरत के नाम पर नहीं लग रहा। अवैस का अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन आसिम शहजाद के साथ कमरुल हक, आप न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करने वाले दहशतगर्द को मौके पर हलाक कर दिया। मारा जाने वाला दहशतगर्द नसीराबाद के इलाके नौताल में रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब कर रहा था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ट्रैक की सर्चिंग के दौरान FC एहलकारों ने दहशतगर्द को फायरिंग करके मौके पर हलाक कर दिया। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंच गए जबकि ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त कुछ देर के लिए रोक दी गई। अब आपको बताएं मोटरवे पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार। 2 मई के बाद M टैग स्टिकर के बगैर कोई गाड़ी मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेगी। इब्तदाई तौर पर ज़ाब्ते का इत्तिलाक M1 और M2 पर किया जाएगा। आपको इसी आम खबर के हवाले से
अपडेट कर रहे हैं मोटर वे पर सफर करने वाले अब तैयार हो जाएं। 2 मई के बाद एम टैग स्टिकर के बगैर कोई गाड़ी मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेगी। इब्तदाई तौर पर ज़ाब्ते का इत्तलाक M1 और M2 पर किया जाएगा और ये नोटिफिकेशन मोटरवे पर सफर करने वाले लोगों के वक्त की बचत के लिए इसको मुतारिफ कराया गया है। मोटरवे पर सफर करने वाले लोगों को होशियार होने का कहा गया है। 2 मई के बाद एम टैग स्टिकर के बाद कोई भी गाड़ी मोटरवे पर अब सफर नहीं कर सकेगी। इब्तदाई तौर पर ज़ाब्ते का इत्तलाक M1 और M2 पर किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध काबीना ने मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में शहीद एहलकार के वरसा के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। थरकोल फील्ड और गोरानो डैम के मुतासरीन को भी मुआवजा दिया जाएगा। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुतालबे पर नॉन प्रमोशनल पोस्ट के लिए टाइम स्केल देने की मंजूरी दी गई है। थरकोल फील्ड और गुरानो डैम के 600 के करीब मुतासरीन को इमदाद देने की भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने मुफ्ती तकी उस्मानी हमले में शहीद पुलिस एहलकार फारूक के वरसा को 20 मिलियन रुपए और 2 मुलाजमतें देने की भी मंजूरी दे दी है, जबकि पेरोल पर कैदियों की आर्जी रिहाई के इख्तियारात वजीर आला से होम सेक्रेटरी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। काबिज फौज ने तलाशी के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी नौजवानों की शहादत का वाकया जिला अनंतनाग में पेश आया, जहां भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवानों को गोली मार दी। भारतीय फौज के ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस ने हिस्सा लिया। आखिर इत्तलात आने तक ऑपरेशन जारी था। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है कि कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत से महरूम रखना आलमी इदारे के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। मलिहा लोधी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और पुरअमन सिफारतकारी के मौजू पर खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारत ने 70 बरस से कश्मीरी आवाम को के हक़ खुदइरादियत से महरूम रखने में किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को नज़रअंदाज करना आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकता है। उन्होंने दुनिया में अमन, लड़ाइयों के ख़ात्मे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से सैफर की कॉन्फ्रेंस रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में आज हो रही है। काबुल में रूसी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन और अमेरिका के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अमेरिका की नुमाइंदगी ज़ल्मे खलीलजाद, जबकि रूस की जानिब से ज़मीर काबलोव शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि सैफरी की इजलास अफगानिस्तान के मामले पर मुज़ाकरात का कोई नया फोरम नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमरीकी सदर ईरान से जंग नहीं चाहते। ट्रंप के कुछ साथी जंगी जुनून में मुब्तला हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उनका ख्याल है कि अमरीका के मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग की जानिब ले जा सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि जानबूझकर ऐसा हादसा भी कराया जा सकता है जिससे हालात ख़राब हो जाएं। उन्होंने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को दहशतगर्द करार देने के अमरीकी फैसले को बेमकसद करार दे दिया है। वेलकम बैक और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पीसीबी में बगावत की गूंज ऐवानों तक जा पहुंची। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ता ने मामले का नोटिस ले लिया। कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राब्ते का पीसीबी को 6 मई को पेशी का नोटिस दिया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि क्वेटा में शेड्यूल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में बदनज़मी की वजह बताई जाए। दूसरी जानिब पीसीबी ने 6 मई को पेशी से माजरत कर ली। तर्जुमान पीसीबी ने कहा कि इजलास में बैनुल-सूबाई राब्ते के सेक्रेटरी मौजूद थे, हकायक उनसे पूछ लिए जाएं।
अब आपको बताएं, यमन में एक अनोखा जासूस पकड़ा गया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि गिद्ध है जो जासूसी पर कैद की सजा काट रहा है। यमनी मीडिया के मुताबिक नेल्सन नामे गिद्ध को जंगजुओं ने सना में पकड़ा। उसे टांग से बंधे ट्रांसमीटर ने पकड़वाया। ट्रांसमीटर के सिग्नल्स को जंगजुओं ने किसी जासूस का काम समझा और जब वो जासूस तक पहुंचे पता चला कि वो इंसान नहीं गिद्ध है। परिंदों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाले इदारे ने गिद्ध को ट्रांसमीटर लगाया था। उनका कहना है कि वो खुराक की तलाश में उड़ता हुआ बल्गारिया से यमन पहुंच गया, लेकिन जंगज़दा यमन में उसे वाफिर खाना मिला और अब वो बेहतर हो गया है। आगे बढ़ेंगे और अमेरिका से आपको खबर देंगे। अमेरिका में खसरे के सैकड़ों नए केसेस सामने आ गए हैं। माहिरीन सेहत को वबाई मरज की वापसी का खदशा पैदा हो गया है। बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के मुताबिक अमेरिका में इस साल खसरे के 695 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 2000 में इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के बाद ये सबसे ज़्यादा तादाद है। इस वबाई मरज के ज़्यादातर केस न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में सामने आए हैं। एलामिये में कहा गया कि वबा जितना ज़्यादा अरसा जारी रहती है उसकी मुस्तकिल वापसी के इम्कानात उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। और अमेरिका की रियासत मिशिगन में ट्रक एक घर में जा घुसा। घर तो तबाह हो गया लेकिन खुशकिस्मती से कोई शख्स हलाक नहीं हुआ। वाक़या कस्बे मैकोम में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ट्रक का एक टायर फट गया। बेकाबू ट्रक दूसरे ट्रक से टकराकर सड़क से उतरकर घर में घुस गया। हादसे में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से घर खाली था, इसलिए कोई हलाकत नहीं हुई। अलबत्ता ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। और मौसम के हवाले से आपको बताएं, स्पेन में बेमौसमी बर्फबारी ने कारोबारी जिंदगी ठप कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी मजीद 3 रोज जारी रह सकती है। स्पेन में ईस्टर के मौके पर बारिश के बाद जब लोग छुट्टियों से वापस आए तो बर्फ का सामना करना पड़ा। दारुल हुकूमत मैड्रिड के शुमाल में वाक़े पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई जिससे हद्दे निगाह चंद मीटर रह गई। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है, जबकि बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल करना पड़ रही है। आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा।